Dear children, today, the 14th of November, is a very special day because it is your day. Happy Children's Day to all of you, my dear students. We thank God for the gift of each one of you, a gift that adds meaning and color to our lives, school, and the society. We also remember Chacha Nehru, who showed great love and concern towards all children and also stood up for their education. He shared a lovely bond with children and was very affectionate towards them. Children, you are the future and the wealth of the nation. So today, we specially pray for you and for the children all over the world. May you bloom as you grow, bringing joy wherever you go. God bless you. Reading from the Holy Bible, a father's wise advice. My children, listen when your father corrects you. Pay attention and learn good judgment. For I am giving you good guidance. Don't turn away from instructions. For I too was once my father's son, tenderly loved as my mother's only child. My father taught me, take my words to heart. Follow my commands and you will live. Get wisdom, develop good judgment. Don't forget my words or turn away from them. Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her and she will guard you. If you prize wisdom, she will make you great. Embrace her and she will honor you. She will place a lovely wreath on your head and will present you with a beautiful crown. My child, listen to me and do as I say, and you will have a long, good life. I will lead you in straight path. When you walk, you won't be held back. When you run, you won't stumble. Take hold of my instructions. Don't let them go. Guard them, for they are the key to life. Don't do as the wicked do, and don't follow the path of evil doers. गीता से लिया हुआ पाठ अध्याय 4 श्लोक 34 तद्विधि प्रणीताते परिप्रश्नेन सेवाय उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जो जिज्ञासा रखता है। सम्मान एवं विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार है वह तभी कुछ बताएगा जब आप सवाल करें। ये सुनी बातें या लिखी बातें सही हैं, परंतु हमें इसका तर्क तोड़ना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुओं ने बताया है एवं जो हमने अनुभव किया है, इन तीनों को सही तालमेल से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, जिज्ञासा रखिए, तर्क करिए और जो हमने सीखा है उन्हें अपने जीवन में अपनाइए, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। Reading from the Holy Quran. There are certain points for the teenagers. Number 1. Be truthful. Keep one thing in your mind. If you decide to be truthful, you will be always away from sins. Prophet Muhammad said, truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. Point number 2. Be grateful to your parents. Allah said, be grateful to me and to your parents to reach to me, which is the final destination. Number 3. Exercise patience and self-restraint.
But none is granted it except those who are patient, and none is granted it except one hearing, having a great portion of good. Number 4. Be determined. O my son, establish prayer. Enjoin what is right, forbid what is wrong, and be patient over what befalls you. Indeed, that is of the matters requiring determination. The Holy Prophet said, teachers and students both share in rewards, but other peoples are deprived of it. Knowledge is Allah's deposit on the earth, and scholars are His trustees of it. Therefore, he who acts according to his knowledge has really delivered his deposits. Lord, in a very special way, we place our children into your loving and caring hands. Let your light lead them along the right path. Help them to bloom and grow according to your will. Give them a heart of love to treat everybody as brothers and sisters. May every child be blessed with happiness in their heart. This is our prayer to you, O Lord. As we celebrate Children's Day, we cannot forget the children who are unfortunate. Many children across the world are unable to enjoy their childhood. Lord, we ask you to add hope and meaning to their lives. Protect them from all dangers and keep them safe in your protective shield. Lord, protect our children each and every day. Be their shield and their fortress. Keep them away from the evils of the world. Let no bad influence corrupt their precious minds. Lord, bless their studies. Allow them to gain more knowledge. We especially pray for our children and their families during this time of pandemic. Protect their bodies and fight their battles during this dangerous threat. And we pray to lead us and our dear students into a safe future. This is our prayer to O Lord. आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और हमेशा उन्हें गुलाब भी पसंद था और प्रिय था और बच्चों को उन्होंने गुलाब के रूप में ही माना है। इसीलिए उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में हमेशा मनाया है। जिस तरह गुलाब अपनी सुंदरता बिखेरता है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह बच्चे भी सभी को बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे कभी छोटे बड़े नहीं होते। माँ बाप और बड़ों के लिए तो चाहे कितनी भी उम्र के बच्चे हों, वो हमेशा छोटे ही और बच्चे ही कहलाते हैं। आज इस वर्ष में बाल दिवस पर बच्चों को अपनी भावनाएं एक गाने के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख की तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद पल
कामयाबी की हर मंजिल को पाना, मुश्किलों से कभी न घबराना, भारत की शान बढ़ाते जाना। प्यारे बच्चों, बाल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हम फिर एक बार बच्चों के लिए सोचें, विचार करें और नई योजनाएं उनके भविष्य को लेकर तैयार करें। प्यारे बच्चों, हमारे देश में बहुत गौरवशाली परंपरा रही है और उसमें गुरु शिष्य का संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता से, प्रतिभा से और विलक्षणता से अपने गुरुओं के नाम को ही अमर कर दिया है। प्यारे बच्चों, शिक्षा प्राप्ति का प्रथम गुण विनम्रता होनी चाहिए और ये विनम्रता सभ्यता और शालीनता के साथ आपके स्वभाव में आना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आप बड़ों का आदर करें, अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानें और अपनी गौरवशाली परंपरा को पहचानें। यही बहुत महत्वपूर्ण की बात है। प्यारे बच्चों, कठिन परिश्रम करें, आगे बढ़ें, जीवन में सफलता प्राप्त करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु कहलाता है और आगे भी रहे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कठिन परिश्रम करें, अपनी संस्कृति को समझें और इस संस्कृति का नाम और भी आगे लेके जाएं। यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष आपकी मेहनत और कोशिश के लिए इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आपके मनोबल को बढ़ाए और आपको जीवन में आगे ले जाए। कविता का शीर्षक है कोशिश कर। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। चाहे सूरज बुझ जाए, मन का सूरज न बुझने दे। चाहे सूरज बुझ जाए, मन का सूरज न बुझने दे। सारी दुनिया का दामन छूटे, सारी दुनिया का दामन छूटे। उम्मीद का दामन न छूटने दे। खुद पर हो पूरा भरोसा, खुद पर हो पूरा भरोसा, तो कम समय में भी हल निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मन की सुन, मन की सुन और लगन लगा। मन की सुन और लगन लगा, सफलता का रास्ता भी बन निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश कर आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की। आज जो थमा थमा सा है, आज जो थमा थमा सा है, वो भी चल निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। बंजर जमीन पे भी फल निकलेगा। ताकत जुटा और हिम्मत को भी आग दे, बंजर जमीन को भी फल निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कहते हैं बच्चों की दुआएं, कहते हैं बच्चों की दुआएं, वो खुदा भी जल्दी सुनता है, वो खुदा भी जल्दी सुनता है। आओ देखें आपकी दुआओं का असर, आओ देखें आपकी दुआओं का असर। सब कुछ अच्छा होकर निकलेगा, सब कुछ अच्छा होकर निकलेगा। दुनिया को जन्नत कर निकलेगा। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सब कुछ अच्छा होकर निकलेगा, सब कुछ अच्छा होकर निकलेगा। थैंक यू।